magazines. So today we will see what all precautions, factors, things you will see when we are loading, unloading these cargos. So it's a many things are very common to all the cargos, but especially when we are carrying out these operations for DG cargo, whether it's containers or break bulk or anything, the very first thing what we should know that what are the details of the cargo. So containers may, yes, we know these are the containers we are going to load. These classes are there, these slots are there, this is the location, plan, everything is done up. So once confirmed to load, the shipper's declaration, of course, which gives us the correct technical name, UN number, class, container number, net weight. So we should be little aware of it. And then we go to the IMDG code, study the properties, precautions listed in the code. And also, while we are studying this, we check out the EMS MFAG. Now we have discussed enough about this emergency schedules and what is the use, what is the benefit. That it prepares us basically that before any loading, any discharging, anything, any operations go on. So we are prepared in case God forbids anything takes place. So how to deal with this emergency, or the action to be taken in case various emergencies and medical aid to be given. And if any special equipment such as medicine, safety equipment, gas detector required, they should be on board. So ये तो हमारा normal हमने देख लिया कि yes, before we say yes, we can load these cargoes. So we have gone through these things that the ship is fully equipped to load these cargoes. Then we plan the stowage as per the code and complying with various requirements. That containers of different classes to be segregated. That is, of course, at the planning stage only we will plan that we have to keep this container, we have to keep this cargo, deck, under deck. So those are little important things, which again we are guided by the IMDG code. And prior loading all emergency equipment in ready state. Ensure container stored in planned slot and that is properly marked and labeled. Visually check container for any damage, leakage, heat emission, smoke, fumes. So this is of course nowadays, because the way these cargoes are loaded, so many gantries working at the same time. So it may not be possible for you to individually see it, but you have the people. You just make sure that everything is good, otherwise let me know. You may be at one bay, the other guys can monitor at the other base. And after loading, secure the container well. So we have to be a little more careful about this DG cargo, that it is secured properly. And then prepare the detailed list, of course, for everyone to know what all cargo we have loaded. Sometimes there are changes from the planning stage to completion stage, so that also we will take care. Then of course carry out regular drills, instruct crew members regarding action to be taken in case of emergency. And yeah, before that it was, this slide got duplicated, that no intoxicated person to be allowed as in charge of operation. Now this is again, of course, the ship's crew, officers, we are all well aware, but the shore people who are loading, who are also taking care, so we have to see that they are also okay. No unauthorized person allowed in the vicinity of cargo. Compartment dry, suitable for cargo. These are like very basic things for, not DG for all the cargos. And cargo handling equipment, in case we are using the ship's cranes, we will definitely check before. But with this cargo, we are doubly sure that nothing happens, because anything breaks loose, the consequences are little serious. And no cargo handling under adverse weather conditions. So it is very common we are in port. So many times bad weather, rain, heavy rain. So we can suspend the operation. No, we'll do it later on.
especially with the container cargoes, because people are of the opinion कुछ नहीं यार, बारिश हो रही है उसमें containers में कुछ नहीं होता. So of course slight rain we keep loading, but I will suggest where the DG is concerned that can wait, other bays can continue. All cargo properly labeled, no labels defaced or removed, and cargo handled carefully, handling kept to minimum. So this is again once it is stored, not that we keep on shifting from here to there. Tank containers as such, no overfilled. Port authority, of course, as a duty officer, as a chief officer, we are not in touch directly, but to the agents, those guys know. And stevedores, of course, they also know. Port also has to take certain precautions when these cargoes are loaded. Fire wires, as usual, if the port requirement is there, they are readily rigged. And emergency equipment, of course, anytime available for fire and spillage. Precautions against fire, explosion, no smoking. A lot of time we say we have put the signs, like tankers, everyone is aware. Anybody coming on the ship, shore people, ship people, we all know the tankers, the consequences, but general cargo ships, sometimes people become little, lenient. No. So it's not only on the boats that no naked lights or no signs, it has to be enforced. So that is the whole idea, that when we are supervising the loading and discharging, that we are seeing these things, that they are enforced, nobody is doing all these things. No naked lights, no hot work, chipping, painting, lot of time, maintenance work or the workshop, anybody is carrying out any hot work, no. Cargo space properly ventilated, and of course B flag and red light during the night that the ship is, what operation she is carrying out. Also there should be a safe access to the packages so that in case of fire they can be removed. Electrical fittings good condition, holes may very common, that if you are loading inside the holes, so there are a lot of conditions, vent flaps, ventilators, electrical wiring, all has to be in good condition. Not then switching on, switching off type, any wire is damaged, it has to be taken care. And cargo should be placed in such a manner there is a safe and clear access to all the LSFF. And package is again stored away from sunlight or other heat resources. Now ये तो of course IMDG code will definitely, we take the guidance from the DGL, dangerous goods list. अगर आप वहाँ पे storage codes या storage या segregation codes आप देखोगे, वहाँ पे वो आपको क्लियरली इंडिकेट दे देगा इंडिविजुअल कार्गो वाइज UN नंबर के हिसाब से, that which cargo needs to be away from living quarters, away from heat sources. I'll touch on that also, that how we go, what are these segregation codes and what are these storage codes are there. So how to pick up from the DGL. So visually check the container for damage, leakage, heat emission, and securing and preparing detailed list. Then comes your again regular drills and crew members regarding action to be taken in case of emergency, education, awareness. Not only, don't keep the things only to yourself. Let everybody know, yes, in case something happens, that let them inform you. Let the duty officer know something is happening, and then he can decide. Lashing, of course, check frequently, weather reports, and then navigate with, of course, even when we are at sea, bad weather, rolling, pitching. So in containers के लिए especially हमारे mind में होना चाहिए, we are carrying DG and they are properly, they are safely secured and nothing is going wrong. Now in case of any incident which involves the dangerous goods which are gone overboard or which have to be jettisoned, so उसके लिए भी हमारे पास mandatory regulation है, Chapter 7 Part A. When an incident takes place involving loss or likely loss overboard of dangerous goods in package form into sea, the master has to report the particulars of such an incident
without any delay and to the fullest extent possible to the nearest coast state. अब ये तो अभी मैंडेटरी रेगुलेशन है, तो इससे भी हो जाता है कि यस समथिंग विद इन what is not within our reach. If something has happened, some incident has happened, so reporting is also very important. The report shall be drawn up based on general principle, and इसका भी क्या क्या particulars देने वो भी आपकी books में है. अब in the event of the ship referred to in paragraph being abandoned, or in the event of report from such a ship being incomplete or unobtainable, अब कई बार है कि ship has gone down, तो ये तो है नहीं कि जी कार्गो प्लान एवरीथिंग इज गॉन डाउन, वहाँ पे ओनर, चार्टर, मैनेजर, ऑपरेटर, ऑल दीज पीपल हैव टू बी अवेयर कि उनके शिप पे कहाँ पे क्या लोड हुआ है, क्या कैरी कर रहा है. एंड अगेन सो दे शुड बी एबल टू इन्फॉर्म दैट दीज आर द obligations placed on them, that they know what all cargo was there. and प्लान तो सबके ऑफिस कंप्यूटर्स पे है, तो ये चीज़ भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब आता है ड्यूटी ऑफिसर व्हेन ही डिस्कवर्स एन इंसिडेंट, he has to also immediately raise the alarm, inform master regarding the same. Something has gone overboard, something is leaking, or something falls overboard even possible. Ship operation, you are picking up, loading, discharging, anything can happen. The crew on deck should be the first to render assistance as well as start the cleanup operations, as well as try to minimize the incident under the supervision of a duty officer, because you know how to carry out this any leakage or anything else, because you have gone through the EMS, and this is what we are going to follow, what is written in the book. So this is the idea of that you are prepared with EMS and anything happens in port, so we are aware. अब आपका क्वेश्चन था certain things like what we call these limited and accepted quantities. Limited and accepted quantities अगर हम इसको बेसिकली समझने की कोशिश करें तो selected certain or dangerous goods packed in small quantities, जिसे हम कहते हैं limited quantities. Small quantities में small cans, small bottles में छोटी छोटी quantities में और very small volumes. Now they pose a lesser risk in transport than do the same goods packed in larger volumes. If I am carrying something in 100 ml or 200 ml or 500 ml bottles में, so उसका risk है अगर वो कुछ भी होता है, leak भी होता है, so it is causing, it's posing a lesser risk as compared to if a bottle or a container which is containing maybe 1,000 liters of that liquid. So इस चीज को देखते हुए they qualify for some relief from the robust packaging requirements provided they are packed and marked properly. अब ये जो लिमिटेड क्वांटिटीज थी, वेरी गुड एग्जांपल अगर आप देखिए आपके टैंकर्स जो सड़क पे पेट्रोल डीजल कैरी करते हैं उनके पीछे भी ये मार्किंग होती है. दे आर कैरिंग अ लिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ दिस फ्लेमेबल गुड्स, सो दिस कुड सेव अ कंसिडरेबल पैकेजिंग कॉस्ट. अगर मैंने उसको बिग पैकिंग में करता हूँ तो आई हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन द वेरी रॉबस्ट पैकिंग्स. और एट सेम टाइम अगर मैं छोटी छोटी पैकिंग में उसी चीज़ को करता हूँ तो मेरे को थोड़ी सी एग्जम्पशन मिलती है. ऑल्सो तो ये कोड है, इट ग्रांट्स एग्जम्पशंस टू सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इफ द गुड्स आर पैक्ड इन लिमिटेड क्वांटिटीज और एक्सेप्टेड क्वांटिटी. अब वो एग्जम्पशन क्या है? सेग्रीगेशन की. समटाइम आपके पास कंटेनर में आपने कार्गो डाला है वेयर 2 classes 4 and 5, 5 or 6 cannot be stored together, but if they are carried in, if they are allowed first of all to be in limited quantities, then they can be stored together. Segregation तो एक ही कंटेनर में the shipper जो है he also saves lot of trouble. ठीक है, लिमिटेड क्वांटिटीज में एक कंटेनर में दोनों कार्गो डाल सकता है. अदरवाइज अगर बिगर पैकिंग्स में हो then he has to use different containers. So the segregation requirements as per IMDG also not applicable for the DG packed as per the limited or accepted quantities. तो ये भी यहाँ पे भी उसे थोड़ी सी exemption मिल जाती है. Now definition of limited quantity accepted and how to find them. तो ये हमने देख लिया, limited quantity is a maximum quantity per inner packaging or article for transporting dangerous goods as limited quantities. अब अगर हम DGL की लिस्ट में जाएं 7A, कॉलम 7A 7B, so the limited quantity for, I'll show you this, antimony compounds is 5 kg per inner packing.
अब ये हमारा DGL है. If I go to column 7A 7B, UN number, proper shipping name, and then we say here he mentions that 7A 5 kg. That means इसकी छोटी छोटी अगर पैकिंग्स हैं so it is allowed. First of all यहाँ पे लिखा है 5 kg means it is allowed in limited quantities. So हम उसकी छोटी पैकिंग अगर बनाते हैं then हमें exemptions है कि ठीक है पैकिंग भी स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए and it can be stored with segregation कैटेगरी में भी थोड़ी सी मेरे को exemption मिल जाएगी. So in the limited quantity 5 kg per inner packaging, so ऐसे इसको हम दिखा सकते हैं. Similarly अगर if you see किसी क्वांटिटी के आगे 0 लिखा हो, limited quantity 0 or 1 liter. Now what do you mean by 0? So 0 से आप क्या समझोगे? लिमिटेड क्वांटिटी फॉर पर्टिकुलर कार्गो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मैं 7A को रेफर करता हूँ, यूएन नंबर से एंटर किया, यहाँ मेरे को 0 दिखता है. तो इससे क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं? एनीबॉडी? कॉमन सेंस है. कुछ नहीं माइंड में आता? अगर सपोज 0 लिखा है या 1 लीटर लिखा है, इसका क्या मीनिंग हो? सर नहीं कैरी कर सकते मतलब. या वेरी राइट. अगर 0 लिखा है मींस दिस पर्टिकुलर कार्गो हैज लिमिटेड क्वांटिटी, वी कैन नॉट कैरी. एंड 1 लीटर लिखा है दैट मीन जो इनर पैकिंग है वो 1 लीटर की होनी चाहिए. अब इनर पैकिंग है जैसे आपके छोटे छोटे कैंस हैं, 1 लीटर के कैन बना के एक बॉक्स में डाल देते हैं. अब वो दोनों चीज़ें आ गई कि उसने इनर पैकिंग की भी लिमिट दे दी कि भाई 1 लीटर या 0 मीन्स नॉट अलाउड. लिमिटेड क्वांटिटीज में अलाउड ही नहीं है, नो सेग्रीगेशन, नो एक्सेप्शन, नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा आपको. एंड 1 लीटर की है तो भाई इनर पैकिंग जो है 1 की होनी चाहिए. फिर उसने आउटर पैकिंग की भी दी है कि जिस बॉक्स में आप ये छोटे कैन या बॉटल्स 1-1 लीटर वालों को डालोगे उसका वेट भी कितना होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी भी कितनी होनी चाहिए. So if the limited quantity is mentioned as 0, this means the DG cannot be carried as a limited quantity. तो I think ये आपको सब क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी आपको क्वेश्चन पूछे कि yes sir we will go to the DG, DG को DGL को कैसे एंटर करेंगे डेंजरस गुड्स लिस्ट को एज पर यूएन नंबर. कॉलम 7A 7B मेरे को दोनों दिखा देगा. So if it is mentioned 0, straight away limited quantity not allowed. And if the limited quantity is mentioned as 1 liter, this means the maximum quantity in the inner packing needs to be 1 liter. And these small packings of 1 liter need to be packed in one single outer packing. उसका maximum size जो है outer packing का needs to be less than 30 kg or 20 kg shrink packed. देखिए कितनी अच्छी तरह से मैं बता दिया कि शिपर के लिए कितना आसान हो गया कि भाई अगर आपको कोई एग्जाम्पशन चाहिए, कुछ चाहिए, ठीक है, आप उसको लिमिटेड क्वांटिटी में पैक करते हो, उससे हमें पता है कि यार डेंजर कम हो जाता है. स्पिलेज भी होगी तो क्वांटिटी थोड़ी है तो इट कैन नॉट क्रिएट अ हैवॉक. और सिमिलरली एक्सेप्टेड क्वांटिटी इज द मैक्सिमम क्वांटिटी पर इनर एंड आउटर पैकेजिंग फॉर ट्रांसपोर्टिंग डेंजरस गुड्स एज एक्सेप्टेड क्वांटिटीज. अब ये भी हमें 7B में मिल जाएगा. 7B does not directly list the maximum quantity per inner and outer packaging. Instead 7B जो है वो आपको ई कोड्स दे देता है. तो अगर हम देखें 7B का जो कॉलम है उसमें भी अगर आपने देखा E0, E2, E2, तो यहाँ पे उसने कोड दे दिए. तो यार E0, E2, E3 थोड़ी सी हमें पता होना चाहिए E2, E3 क्या है. Now these various E codes E0 to E5 by referring to the table below you can find out allowed accepted quantities. कि अगर उसने E लिखो, E0 है means not permitted, and E1 maximum net quantity per inner packaging 30 ml या 30 grams, and maximum net quantity outer packaging 1000 grams. So E1, E2, E3, E5 तक ये सारी की सारी कोडिंग एप्लीकेबल होती है. So ये सारा का सारा श्योर पीपल हु आर पैकेजिंग दिस, हु आर डूइंग ऑल दिस, तो उनके लिए ये दे हैव टू बी केयरफुल. बट हमें भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि लिमिटेड एंड पैकेज्ड क्वांटिटी जो है और एक्सेप्टेड क्वांटिटी जो है वो क्या चीज़ है. सो दिस वे वी कैन डेफिनेटली. अब आ गया कि भी ठीक है शेपर ने तो इसकी मार्किंग को पैक कर दिया. अब मार्किंग्स हाउ डू वी रिकॉग्नाइज. सो लिमिटेशंस एंड लेबलिंग.
requirements for DG goods transported in limited quantities or accepted quantities, even for dangerous goods transported in limited quantities. There are some packaging and labeling requirements. अब वो क्या है कि आप छोटी छोटी कैन बॉटल के ऊपर तो हम नहीं लिख सकते 100 मिलीलीटर की या 200 ml की बॉटल या कैन है, अब उसके ऊपर ये मार्किंग लगाने गया तो उसका तो कितना खर्चा आ जाएगा. So goods must be carried in small containers, for example bottles, which are then packed in boxes or shrink wrap trays. Packages must pass certain performance tests. So ये भी है कि जो टेस्ट है कि यहाँ भी उसकी पैकिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, हिलने से कुछ होगा तो नहीं. Less stringent than the UN approved packages. And maximum gross weight is 30 kg for boxes of 20 kg for the shrink wrap trays. तो ये भी हमने देख लिया. अब आउटर पैकेजेस जो हैं दे मस्ट बियर द लिमिटेड क्वांटिटी मार्क एंड हैजर्ड सिंबल्स. तो ये भी हम देख लेंगे कि यार जो आउटर पैकेज है जिसमें उसने छोटी छोटी बॉटल्स या कैंस को एक बॉक्स में डाला है, उसका जो बॉक्स बनता है उसके ऊपर, तो उसको भी शिपर को भी कन्वीनियंट, एंड ही आल्सो कैन टेक सम एग्जम्पशंस. एट द सेम टाइम जो बॉक्स है उसके ऊपर वो लिमिटेड क्वांटिटी का मार्क आ गया. सेम अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड, कभी आप ऑयल टैंकर जो ये तेल कैरी करते हैं रोड पे, उनके पीछे भी देखिए ये मार्किंग लगी होती है लिमिटेड क्वांटिटीज वाली. सो डेंजरस गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन लिमिटेड क्वांटिटी मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन द शिपिंग डॉक्यूमेंट ऑल्सो. कि जो आपके डॉक्यूमेंट बनेंगे जो डेंजरस गुड्स डिक्लेरेशन है उसके बीच में भी होना चाहिए ये जो कार्गो मैं कैरी कर रहा हूँ दिस इज इन लिमिटेड क्वांटिटीज. तो लीगली भी ताकि नोबडी कैन हैव एनी ऑब्जेक्शन. तो जो भी पेपर वर्क कर रहा है उसको भी पता है कि ये कार्गो किस फॉर्म में कैरी किया जा रहा है. एक्सेप्टेड क्वांटिटीज, यूएन अप्रूव्ड पैकेजेस नॉट रिक्वायर्ड, डेंजरस गुड्स हैजर्ड सिंबल्स नॉट रिक्वायर्ड, पैकेजेस मस्ट पास अ ड्रॉप टेस्ट, स्टैकिंग टेस्ट, and total number of packages carrying on any one cargo transport unit shall not exceed 1000. तो ये सारी चीज़ें हैं. वैसे तो हमारे इसमें नहीं है बिकॉज हमने तो पैक करना नहीं है, बट अगेन समटाइम आपको एग्जाम में पूछते हैं कि हाँ यार लिमिटेड एक्सेप्टेड क्वांटिटीज क्या हैं, तो सर इसका ये पर्पस है, एंड फर्दर उसके में सो मेनी टर्म कंडीशंस आर देयर कि अगर मैंने ऐसे पैक करना है तो ये टर्म कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. सेम वे आउटर पैकेज मस्ट बियर accepted quantity mark and statement in the shipping documents. अब मार्किंग जो है वेरी सिंपल कि दिस इज अ लिमिटेड क्वांटिटी मार्किंग एंड दिस इज अ लिमिटेड क्वांटिटी मार्किंग बाय एयर. वैसे तो आपने देखा होगा टैंकर्स के पीछे भी ये वाई लिखा होता है एंड इस टाइप का साइन भी बना होता है. एंड इफ इट इज एक्सेप्टेड क्वांटिटी दैट मीन्स यू नो कि भी इसके अंदर छोटी छोटी पैकिंग्स हैं जो कंटेनर के अंदर हो सकती हैं, और बॉक्स जो है वो आपका उसके ऊपर ये सैंपल्स लगे होंगे. सो दिस इज बेसिकली आपका लिमिटेड एंड एक्सेप्टेड क्वांटिटी जो कॉलम 7A एंड 7B की DGL लिस्ट में आपको मिलेगा. सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन कि लिमिटेड एक्सेप्टेड क्वांटिटीज़ कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी 7A 7B कॉलम से, एंड इसका पर्पस क्या है, जस्ट टू गिव सर्टन एडवांटेज. एंड एडवांटेज को भी सेफ्टी को माइंड में रखते हुए दैट्स व्हाई दीज एग्जम्पशंस आर गिवन क्योंकि दीज कार्गोज इन स्मॉल क्वांटिटीज कैन नॉट क्रिएट अ बिगर हैजर्ड. अब एक क्वेश्चन आता है कि आप व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शिपर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ऑफन पूछा भी जाता है और कई बार रिटर्न्स में भी आ जाता है. व्हाट आर द शिपर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड व्हाट इज द ओनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर कैरिंग DG कार्गो. आई थिंक हमने काफ़ी पढ़ लिया है, तो इसमें यू शुड बी एबल टू एटलीस्ट से सम पॉइंट्स. शिपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एंड शिप ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है व्हेन वी आर कैरिंग दिस कार्गोस. एनीबॉडी? चलो यार कोई पॉइंट तो एक तो पॉइंट आपके मन में आना चाहिए. मेरे को तो लगता है कि मैंने जो पढ़ाया कुछ भी समझ नहीं आया लगता. शिपर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स दिस DG कार्गो.
सर शिपर ने पूरी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करनी है प्रॉपर्टीज कार्गो की। सिंपल, यस, तो वेरी गुड, डिक्लेरेशन में सब कर देगा। यस। और कुछ देखो, ठीक है, जो आपने इसको थोड़ा सा देखिए, आंसर आपने बोल दिया इसको थोड़ा सा कि द फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट थिंग द शिपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द डेंजरस गुड्स डिक्लेरेशन। एंड अगर आपको फर्दर क्वेश्चन है डिक्लेरेशन, यू नो डीजी डिक्लेरेशन में क्या क्या उसने आपको डिक्लेयर करना है, बेसिकली कार्गो क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या, क्लास क्या है, उसका प्रॉपर शिपिंग नेम क्या है, क्वांटिटी कितनी, वो सारी डिटेल तो एक हेडिंग में आ गया कि ही हैज टू गिव अस द डेंजरस गुड्स डिक्लेरेशन। एनीथिंग एल्स? एंड ये मैंडेटरी है, इट्स नॉट ऑप्शनल, इट्स नॉट द रिकमेंडेशन, इट इज नाउ बाय लॉ। उसके बिना आपका कार्गो एजेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सर इससे एमएसडीएस भी अलग से प्रोवाइड करते हैं क्या? बेसिकली इफ यू सी एमएसडीएस जो है, इसका जो ये डेंजरस गुड्स डिक्लेरेशन है, दैट इज सॉर्ट ऑफ अ एमएसडीएस ओनली, बिकॉज उसके अंदर उसने दे दिया है, बिकॉज हमें एमएसडीएस क्या चाहिए, यूएन नंबर, प्रॉपर शिपिंग नेम, प्लस अगर कुछ एक्सेप्शनल उसकी प्रॉपर्टीज हैं जो हो सकता है बुक में ना हो। अगर मैं कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और मेरे को नहीं, पता है जैसे तो टेंटर पे एमएसडीएस में फर्स्ट एड मेजर रहेगा, मतलब वो सब फिजिकल कि इसी में आ प्रॉपर्टीज जाता रहे। है, या सब इसी में आ जाता है, उसकी डेंजरस गुड्स डिक्लेरेशन में आ जाता है। मैंने आपको भेजा, अगर आप उसको देखोगे तो वहीं पे सब कुछ ऐड कर देगा। तो इसी को डीजी Yes, sir. डिक्लेरेशन को देखने से ही हमें पता लग जाएगा कि कार्गो क्या है। एंड अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे पास यूएन नंबर बुक है, मैं उसको खोल के देख लेता हूँ। चलो ये तो छोड़ो, चलो शिपर की होगी, शिप ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब आप चीफ ऑफिसर हो, हम इस गुड्स को हैंडल कर रहे हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेयर वी आर कंसर्न, हमें क्या क्या करना चाहिए? जो हमने रिसीव किया है वो ऑर्डर में हो जाए, एज पर द डिक्लेरेशन जो मिला है। ओके, तो मैनिफेस्ट के हिसाब से है कि नहीं है, और उसकी लेवलिंग वगैरह सब चेक कर लेंगे सर, लेवलिंग सही है कि नहीं है। ओके, और बस जो से क्वेश्चंस वगैरह बताई गई है उस हिसाब से शिपेज रेडी डीओसी से रिकमेंडेड जो भी हमारे क्लास की जो भी लोडिंग है वही होनी चाहिए, दूसरा कार्गो नहीं होना चाहिए एज पर हमारा शिप अप्रूवल जो है। देखो बच्चे, मैं अभी आपको कहता हूँ यू आर अ शिप ओनर। आप कहीं पे भी बैठे हो, जिनेवा में बैठे हो, यूएस में बैठे हो, आपका शिप जो है कहीं पे भी चल रहा है, किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में चल रहा है ना। अगर मैंने शिप पे ये डेंजरस गुड्स कैरी हो रहे हैं, नाउ आई एम नॉट सेइंग एज द ओनर कि आपने आगे बंदे सब रखे हुए हैं, यू गॉट ह्यूज डिपार्टमेंट्स वर्किंग फॉर यू। तो सबसे पहली चीज़ तो मेरे मन में ये आएगी कि यार जो ऑफिसर्स या जो भी क्रू हमारा इस शिप पे काम कर रहा है, आर दे ट्रेंड, हैव दे गॉट इनफ ट्रेनिंग टू कैरी दिस डेंजरस गुड्स? आएगा कि नहीं आएगा? अब जैसे आपकी सर्टिफिकेशन, इट इज़ रिलेटेड टू दैट ओनली। यार सबसे पहले द पीपल हु आर हैंडलिंग दिस गुड्स ऑन माई शिप, दे शुड बी ट्रेन्ड टू हैंडल दिस डेंजरस गुड्स। अब आपकी जो ट्रेनिंग है उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, वही हमें सारा का सारा इस कोड को इसीलिए पढ़ रहे हैं, पढ़ के आपने समझ लिया एंड यू आर गोइंग फॉर द एग्जाम, वहाँ पे आपकी सर्टिफिकेशन होती है कि हाँ भी यू आर ट्रेन्ड टू हैंडल दिस डेंजरस गुड्स। सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है। चलो लेट्स सी हमने क्या क्या लिखा। शिपर, फर्स्ट ऑफ ऑल शिपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लासीफाई, डिक्लेयर द गुड्स इन कंप्लायंस विद IMDG कोड, डीजी डिक्लेरेशन, पैकेज द गुड्स इन कंप्लायंस विद IMDG कोड, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेबल द आइटम्स, पैकेजेस विद प्रॉपर शिपिंग नेम, यूएन नंबर, हैजर्ड लेबल्स व्हेन एप्रोप्रिएट, मरीन पोल्यूटेंट, ये भी सब उसने करना। ऑल्सो he has to certify, he has to give a signed statement that the goods are correctly packed and labeled and the goods are suitable for transportation by sea. ये ना कि कल को यार मेरे को पता ही नहीं था शिप ऐसे चलता, आई थॉट शिप तो बिल्कुल सीधा चलेगा, कभी हिलता नहीं, उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। नो, so he should have the packings done in such a way that this packing is sufficient for the transportation by sea and ensure incompatible goods are not stored in the same container. अब वो वहाँ पे कैसे कराता है, किसको, किस अथॉरिटी को, किसकी गाइडेंस लेता है, किस कंपनी को उस पर
अपनी आउटसोर्सिंग करता है वो उसकी जिम्मेवारी है, बट हमारे पास जब गुड्स आए तो वो इस स्टेट में आने चाहिए. He has to issue a stowage certificate when stowing in a container or hold, and also that he has to ensure जो पैकेजिंग है, जो मेरा सबसे एज अ कैडेट में देखता था, आज वो एक लॉ बन गया कि पैकेजिंग इज स्टडीली मेड एंड इज इन गुड कंडीशन. यानी कि फ्रगाइल गत्ते का डिब्बे में दिवाली के पटाखे पैक करके दे दिए तो सॉरी, दिस विल नॉट डू. And is designed so an internal surfaces contents may come into contact are not dangerously affected. ये सारी shipper की responsibility, and they are able to, these packaging are able to withstand the normal risks that are involved in handling and transportation by sea. अब ये नहीं कि जी आपने क्रेन से उठाया तो मेरा बॉक्स टूट गया. He has to give enough lifting points. इसी को बोलते ना. हाँ जी सर इसी को मतलब कहते हैं ना कंटेनर पैकिंग सर्टिफिकेट. पैकिंग सर्टिफिकेट, यस. जो पैकेजिंग का है, जो देखा आपने डीजी, आई शो यू दैट डीजी का जो वो है, डीजी डिक्लेरेशन है, उसके साथ ही अब वो कंबाइंड हो गया, उसके साथ एक पैकेजिंग सर्टिफिकेट आता है दैट आई हियर बाय सर्टिफाइड दैट द गुड्स आर पैक्ड एज पर IMDG कोड. तो साइन स्टेटमेंट उसकी तरफ से आता है. तो कल को कुछ होता है, पैकेजिंग का भी क्लास होता है ना सर, 1 2 3 करके आता है उसमें, या वो ग्रुप आ गया, वो हमारे लिए कि पैकेजिंग ग्रुप कौन सा उसने यूज किया है. तो पैकेजिंग ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3. सो ग्रुप 1 है कि वो आपका कॉलम 5 में आ जाता है. DGL के कॉलम 5 में हमें पता लग जाता है कि यार इसकी पैकेजिंग जो है अकॉर्डिंग टू ग्रुप 1 है या ग्रुप 2 या ग्रुप 3. अब ग्रुप 1 है तो मीन्स पैकेजिंग जो है रॉबस्ट है. पैकेजिंग ग्रुप 2 है मीन्स इस कार्गो को पैकेजिंग जो है इतनी रॉबस्ट नहीं चाहिए. एंड पैकेजिंग ग्रुप 3 मीन्स यार ठीक है, गत्ते का डब्बा भी चलेगा, दिस गुड्स आर नॉट सो डेंजरस. तो ये हमें इंडिकेशन देता है. उसके लिए भी ये है कि पैकेजिंग ग्रुप 1 है तो उसने किस टाइप की पैकिंग करनी है. हो सकता है स्टील का डब्बा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉक्स होना चाहिए, तो उसको भी ये देता है. सो ही हैज़ टू, वो कैसे, वो ही हैज़ टू फॉलो दिस कोड. बट हमें उसने एक साइन स्टेटमेंट, वही जो डीजी आपका, अगर आप देखोगे, आई थिंक मैंने कल आपको भेजे थे, आई होप आई हैव सेंड यू दिस नोट्स ना थोड़े बहुत कल, उसमें डीजी डिक्लेरेशन. यस सर, आपने भेजा. हाँ जी, वो डीजी डिक्लेरेशन में नीचे एक जगह उसने लिखा है दैट he certifies and he signs that their goods are packed properly. अब तुमने पैकिंग ही प्रॉपरली नहीं की है and then tomorrow you ask for the claim तो छोड़ो, why should I take a risk? My whole ship is at a risk because of your improper packing. तो आजकल कंटेनर में वो चीज़ उसने और कम कर दी. Imagine these dangerous goods when they were carried without containers. अब कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो वो तो ठीक है, आपके मन में आता है मैं ये चेक करूँगा, ये चेक करूँगा, वो तो हमने क्या करना है. बट सबसे पहले कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंश्योर द क्रू हैज रिसीव नेसेसरी ट्रेनिंग. पीछे आपने सुना होगा, आई ऑल्सो रिमेंबर हैजमेट कोर्सेज. लॉट ऑफ कंपनी स्टार्टेड हैजमेट कोर्सेज, लॉट ऑफ PSC, लॉट ऑफ अदर पीपल कि यहाँ भी आप डीजी कैरी कर रहे हो, बताओ ज़रा. तो उनको समझ नहीं आता था कि हमारा जो सर्टिफिकेट हमने लिया है, ये चीफ ऑफिसर का सर्टिफिकेट है, इसमें यार हमने सारी ट्रेनिंग की है, सबने हमें चेक किया, बट वो नहीं मानते थे. फिर एक हैजमेट कोर्स भी शुरू हो गया कि चलो जी हैजमेट कोर्स का भी सर्टिफिकेट ले. देन ही टेक्स, जो हमारे शिप के जो उसको ऑफिसर्स हैंडल कर रहे हैं, क्रू हैंडल कर रहा है, एवरीवन नोज दे अंडरटेक सेग्रीगेशन ऑफ गुड्स इन कंप्लायंस. And then we know that to prepare a list of dangerous goods on board and their location. अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्रेन टू हैंडल दीज गुड्स एंड वी डू नो हाउ टू सेग्रीगेट दीज गुड्स, कहाँ पे उसको रखना है वो भी हमने डिटेल में पढ़ लिया. एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट. तो ये भी हमारी IMDG कोड के अंदर ही इस कैरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है. ये नहीं है कि भैया मैंने तो लोड कर लिया, अब लिस्ट बनाना मेरा काम नहीं है. नो, चाहे कोई भी बना के दे, इट इज द शिप ओनर्स मैन. दे हैव टू मेक द टोटल लिस्ट ऑफ DG ऑन बोर्ड, जो हम रखेंगे. एंश्योर नेसेसरी इमरजेंसी इक्विपमेंट इज ऑन बोर्ड. अब आई थिंक यू कैन सी द डिफरेंस कि हाँ यार वाकई एज अ चीफ ऑफिसर तो सबसे पहले तो मैं इन चीज़ों को देखूंगा. बाकी ठीक है, उसके ऊपर मार्किंग है, लेबलिंग है, वो ड्यूटी ऑफिसर देख लेगा. स्टोरेज है, स्लैशिंग है, वो बॉसन देख लेगा. तो उन सबको भी जो आप ड्रिल्स करते हो, जो रिकॉर्ड रखते हो, ये भी एक वन वे जब इंस्पेक्शन होती है, सो दे ऑल्सो ड्रॉ इन्फ्रेंस कि हाँ यार शिप इज एक्चुअली गिविंग अ सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग.
टू द अदर क्रू। अब ट्रेनिंग जो है क्रू को कौन दे सकता है? ट्रेंड पर्सन ही दे सकता है ना। तो यू आर द ट्रेंड पर्सन, सो यू हैव आल्सो टेकन अ ट्रेनिंग। जब आप ट्रेंड हो गए हो, नाउ यू आर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द अदर पीपल। तो ये जो आपकी ड्रिल्स हैं, हम कहते हैं कि अरे यार ये नाम के वास्ते हैं, खाली फिलअप करने के लिए नहीं है। गॉड फॉरबिड समथिंग हैपन्स, तो आज के टाइम में तो ये चीज़ पहले तो चलती थी, इट वाज टेकन कि ठीक है यार, कैप्टन ऑफ द शिप व्हेन ही इज अ मास्टर ही नोज एवरीथिंग, चीफ ऑफिसर ऑफ द शिप ही इज वेल एजुकेटेड, ही नोज एवरीथिंग। बट बीच बीच में जब उनको लगा कि नहीं यार, अब हम अपना ही ना सोचें ना, अपने ही बारे में ना सोचें कि यार मेरे को तो सब कुछ आता है। देयर आर ऑल टाइप ऑफ पीपल व्हिच वर पुट ऑन द शिप, जिनको नॉलेज थी, जिनको नहीं भी थी, वो भी चल रहे थे। एंड व्हेन दोज कंट्री पीपल, जिनके कंट्रीज में ये शिप्स गए, उन्होंने उनसे पूछा तो दे वर एब्सोल्युटली जीरो। यहाँ पे ये सारी चीज़ जो थी खुल गई। अब ये दिखती कि यस, जो आपको क्वेश्चन पूछता है, पीएससी है या दूसरे बंदे कोई भी हैं, ऑडिटर्स हैं, कोई वो क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका यही पर्पस है, ताकि कल को कहीं पे भी किसी भी जगह पे कोई गवर्नमेंट बॉडी अगर क्वेश्चन करे भी, आप शिप चला रहे हो, आपने इसके ऊपर जो भी ऑफिसर्स क्रू जो भी रखा है, आर दे अवेयर ऑफ, आर दे आर ट्रेंड और नॉट। तो इसके लिए हमें बिल्कुल ब्लैंक आंसर नहीं देना। सो दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू इन डिटेल, बट इतनी चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए कि हाँ यार इमरजेंसी मेजर्स क्या हैं, लिस्ट ऑफ गुड्स, वो यही चीज़ें हमें पूछते हैं। तो यही कंसिक्वेंसेज हैं, और यही चीज़ आपके एग्जाम में आएगी कि ठीक है यार, कैरियर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, आई एंश्योर everybody is trained, we know the segregation, we make the list, we see the equipment is on board, that's all. चलो, ये तो था आपका डीजी का। एंड थोड़ा सा एक टॉपिक और बाकी रह गया, अबाउट योर व्हाट वी कॉल द स्टोरेज कैटेगरीज एंड सेग्रीगेशन कोड्स। तो आज तो नहीं, आज तो चलो आपका लंच टाइम हो गया, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन, ये मैंने डिस्कस भी नहीं किया, एंड ये मैं थोड़ा सा आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ दिस। अभी तक तो हमने सेग्रीगेशन की जो वो टर्म्स पढ़ी हैं, सेग्रीगेशन की वेरियस सेग्रीगेशन कैटेगरीज, वो चीज़ अलग है। एंड सेग्रीगेशन कोड जो हैं, अगर इफ़ यू जस्ट फॉर 1 मिनट आई विल शो यू, इफ़ वी सी द DGL, अगर हम DGL को देखें तो ये देखिए, हमने देखा था कॉलम 16A 16B, isn't it? 16A 16B क्या कॉलम है कि बेसिकली इट इज स्टोरेज एंड हैंडलिंग कोड्स हैं इसमें, एंड ये सेग्रीगेशन कोड्स हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ना कोई इसको पूछेगा, बट चलो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू। ये कैटेगरी डी, ये SW1, SW2, ये SG46, ये क्या चीज़ है? बाकी तो हमने यहाँ तक EMS तो समझ लिया 15, आई होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट FDSU क्या है। फायर के लिए शेड्यूल डी एंड स्पिलेज के लिए शेड्यूल यू। अब ये जो स्टोरेज की जो हैंडलिंग है, स्टोरेज कैटेगरीज एंड सेग्रीगेशन की जो कोड्स हैं, अब सेग्रीगेशन कैटेगरीज हमने देख ली, अवे फ्रॉम, दिस फ्रॉम, दैट फ्रॉम, उसी को उसने थोड़ा यहाँ पे इलेबोरेट किया है। तो इसको हम, आई थिंक टुमारो क्लास है, यस टुमारो वी हैव क्लास, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये चीज़ जो है इसका क्या मीनिंग है एंड हाउ वी एंटर, सो दैट यू शुड नो कि एक तो ये कैटेगरीज क्या हैं, और एक आपके जो हैं स्टोरेज एंड सेग्रीगेशन दोनों का हो गया, एक आपके कंपैटिबिलिटी ग्रुप्स फॉर द एक्सप्लोसिव्स क्लास 1। तो थोड़ा सा हमने वेरी ब्रीफली व्हेन वी वर गोइंग थ्रू, मैंने ब्रीफली उसको टच किया था, बट आई विल अगेन शो यू ताकि आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे वो कंपैटिबिलिटी ग्रुप्स है क्या चीज़, कंपैटिबिलिटी ग्रुप्स क्या हैं, ये स्टोरेज कैटेगरीज क्या हैं, एंड सेग्रीगेशन कोड जो हैं इनको हम कैसे करते हैं। सो टुमारो प्लीज़, आई थिंक आफ्टरनून में हमारी क्लास बी लिटिल फ्रेश, सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल। एक बार आपको इफ़ आई एक्सप्लेन यू, आई डोंट थिंक इट विल टेक टाइम, बट उसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम जाता है, अपने आप पढ़ने में, समझने में, एंड देन आई विल सेंड यू जो भी मटेरियल मेरे पास है। ठीक है, ओके ओके सर। कोड्स, तो इसमें भी पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस हैं, and we have seen these compatibility groups
classification codes basically for your class 1 cargoes. Goods of class 1, that is explosives, are considered to be compatible if they can be safely stored or transported together. Explosives में class 1 cargoes में there are a lot of varieties, and they feel that all of them cannot be carried together. We just can't say class 1 and सब कुछ एक साथ डाल दो. No. So there is a further sort of subdivision that different type of explosive, different types of this class 1 cargoes, they are divided into different groups. That is from A to L, excluding I and N and S. There are 13 groups. So basically, किस लिए किया उन्होंने divide? Yes, if they are carried together, something happens. So it is just to, avoid this probability of an accident, that if they are carried in the same compartment or same container. If you see this classification code for an explosive, now we have already seen these classes, subclasses 1.1, 1.2, 1.3. वो तो उन्होंने 6 क्लासेस दे दिए 1.1 to 1.6, बट उसके साथ उन्होंने एक डिवीजन नंबर दे दिया, व्हाट वी कॉल द, उसका एक ग्रुप दे दिया ABCD. ना ये ग्रुप्स हैं क्या, इसको अगर आप समझ लोगे. सो कंपैटिबिलिटी ग्रुप्स लेटर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द कंट्रोल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, and to prevent an increase in hazard that might result if certain types of explosives were stored or transported together by any means, any modes of transport. अब अगर इनको हम देखें कि if you see these codes, classification codes, उनका this is the compatibility group A, primary explosive substance, and group B, group C, इसमें कौन से हैं? So article containing primary explosive containing 2 or more effective, इसमें सारा उसने describe कर दिया यहाँ. So we don't have to remember कि A, B, C, D में क्या है, but we have to have a knowledge कि यार ये जो classification groups हैं ये basically अलग-अलग different types के explosives के हैं, कि explosives are been divided into different groups. And इसके साथ when we have, तो इसका पूरा classification code क्या बन जाता है? So you will always see whenever we are carrying these explosives or anything, 1.1A, 1.1B, 1.2B, 1.4B, तो वो सब डिवीजन के साथ ये आपका कंपैटिबिलिटी ग्रुप लग जाएगा कि ये कंपैटिबिलिटी ग्रुप इट बिलोंग्स टू ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप सी. सो ये थोड़ी सी लाइक इफ यू सी दिस वे, A primary explosive substance, B is article primary, C propellant, D, E, सब की उसने अलग अलग बेसिकली प्रॉपर्टीज के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया. अब ये ग्रुप तो हम समझ गए. अब हमें प्रॉब्लम आती है कि विच ग्रुप कैन बी कैरिड टुगेदर एंड विच ग्रुप कैन नॉट बी कैरिड टुगेदर. तो उसकी भी उसने बेसिकली, वैसे तो ये देखिए क्लास 1.1 है, 1.1 में 1.1A, 1.1B, 1.1C इतने ही कार्गोस हैं अप टू 1.1G. एंड 1.2 है, उसमें 1.2B, 1.2C इसी टाइप के कार्गोज आएंगे. ओनली दीज ग्रुप्स आर एप्लीकेबल विद दिस सब डिवीजन 1.2. तो ये सारी उसने आपको सब डिविजन्स जो हैं और ग्रुप्स के साथ 1.3C, 1.3 में ओनली 1.3C एंड 1.3G, एंड 1.4 के लिए भी 4 और 5 ग्रुप्स आर देयर. नॉट ऑल ऑफ देम आर एप्लीकेबल टू ऑल द ग्रुप्स. अब इनको अगर हमने कैरी करना है तो इसके लिए उसने आपको कंपैटिबिलिटी जिसे कहते हैं, दे कैन बी शिफ्ट विद लाइक ग्रुप A कैन बी शिफ्ट विद ग्रुप A, ऑफ कोर्स B कैन बी शिफ्ट विद B एंड ओनली S. A and B cannot be shipped together. Similarly, C can be shipped with D, E, N and S. So ये कैटेगरी जो हैं, these are called basically the compatibility groups. कि ये ग्रुप जिस ग्रुप्स में कोई कार्गो आता है, एक्सप्लोसिव आता है, किस ग्रुप का है, फिर वो कंपैटिबिलिटी कोड जो है ये भी आपका IMDG कोड में दिया हुआ है.
So this is basically the guys who are packing these goods, who are storing this in containers and all that. So they are thorough, they know. And ये सारा का सारा डॉक्यूमेंटेड होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स में आएगा कि यस इस कंटेनर में कौन से कार्गो, स्पेशली एक्सप्लोसिव्स के लिए कि अगर एक कंटेनर में वो 2 एक्सप्लोसिव कहने को ठीक है क्लास 1.1 और 1.2, बट फर्दर जो है कौन से ग्रुप को ये कार्गो बिलोंग करता है. So this way you will see this like F, group F can be carried only with group F, तो ठीक है अपने साथ तो हो गई, and S, A, B, C, D, no, nothing. So this is your basically compatibility groups. इस पे ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, you can write. I have sent you these other notes. ये भी I think पता नहीं मैंने नहीं भेजे, मैं भेज दूंगा दोबारा से चेक करके. These are the compatibility groups and this is valid for your explosives class 1 cargos. ठीक है, I hope it's clear. सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा सर इसका? Again write short notes on compatibility groups. अब आप compatibility groups में आपने क्लासिफिकेशन में नहीं चले जाना कि क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट, क्लासिफिकेशन आर 9 क्लासेस. सो compatibility groups के लिए आपका स्ट्रेट वे आंसर शुरू हो जाएगा. गुड्स ऑफ क्लास 1 कंसीडर टू बी कंपैटिबल इफ दे कैन बी सेफली स्टोर्ड एंड दीज गुड्स आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कंपैटिबिलिटी ग्रुप्स A to L. तो इसमें हमेशा आता है कि डिस्क्राइब ब्रीफली या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कंपैटिबिलिटी ग्रुप्स एंड देन वी कम द व्हाट वी कॉल द सेग्रीगेशन की स्टोरेज अगे कैटेगरीज, isn't it? So यहाँ पे भी हमने देख लिया है तो उसने ग्रुप्स बना दिए. अब यहाँ पे certain time he says segregation codes और storage categories. अब ये भी अगर आपने if you have gone through, I'll show you this what you call DGL. अगर हम DGL देखें तो उसमें भी कॉलम 16A एंड 16B में वो हमें क्या दिखाता है, 16A 16B स्टोरेज कोड्स एंड उसके साथ हो आपको सेग्रीगेशन कोड्स. अब सेग्रीगेशन हमने पढ़ ली है. नाउ व्हेन ही सेज he write short notes on segregation codes and segregation terms are different. कई बार वो पूछता है आपको describe और write short notes on segregation codes या storage codes या storage categories. So storage categories, segregation codes वो अलग चीज है. What we have studied from, away from and all that. So basically उन्होंने UN नंबर वाइज हर कार्गो को आपको अलग अलग से उसने डिवाइड कर दिया है. सो लेट्स सी ये कैसा दिखता है. तो अगर हम देखें हमारा जो DGL है इसके अंदर कॉलम 16A 16B, अब यहाँ पे उसने लिख दी कैटेगरी 4 एंड SW1, isn't it? तो ये आपका स्टोरेज कोड आ गया. SW1 इज द स्टोरेज कोड एंड यहाँ पे सेग्रीगेशन में SG27 SG31. सो बेसिकली अगर आप सेग्रीगेशन को देखोगे हर दिस इज कमिंग फॉर अ पर्टिकुलर UN नंबर, isn't it? ये जैसे UN नंबर 004 को एप्लीकेबल है. तो हम अपना UN नंबर से देखते हैं. सो वी सी दिस UN नंबर सो एंड सो. यहाँ पे कैटेगरी 03 स्टोरेज कोड SW1 एंड सेग्रीगेशन कोड SG2. अब यहाँ पे भी ये बता देगा स्टोर लाइक अवे फ्रॉम, सेपरेटेड फ्रॉम, बट ये जो है इट इज वेरी क्लियरली फॉर इंडिविजुअल UN नंबर, इंडिविजुअल कार्गो, क्लास वाइज नहीं है. क्लास वाइज सेग्रीगेशन तो हमने देख ली. अब ये इंडिविजुअल आपकी सेग्रीगेशन उसके तरह है. अब ये किस तरह से दी हुई है, इफ यू रीड दिस स्टोरेज कैटेगरीज. स्टोरेज कैटेगरीज फॉर क्लास 1. Storage categories for class 1 are dangerous goods of class 1 other than division 1.4s when limited quantity shall be stored as indicated in column 16A of the dangerous goods list. अब वहाँ पे उसने हमें लिख दिया था कैटेगरी 1, कैटेगरी 4, जैसे इसमें लिखा है कैटेगरी 4 एंड SW1 के हमारा स्टोरेज कोड. सो कैटेगरी ये कार्गो जो है इट इज अगेन सॉरी एक्सप्लोसिव्स, इट बिलोंग टू कैटेगरी 4 क्लास 1 एक्सप्लोसिव्स में है. अब यहाँ पे इसने इसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया है. ऑल द कार्गोज आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज. अब उसने डिवाइड कर दिया जैसे हमने पढ़ा शिप्स, एक तो अप टू 12 पैसेंजर्स कार्गो शिप्स एंड एक
था पैसेंजर शिप जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ पैसेंजर्स आर देयर। कार्गो शिप्स अगर स्टोरेज कैटेगरी 1 है एंड आई एम गोइंग टू कैरी दिस कार्गो ऑन कार्गो शिप्स, देन ऑन डेक इन क्लोज्ड कार्गो ट्रांसपोर्ट यूनिट और अंडर डेक, दोनों में कैटेगरी 1 जो है आप स्टोर कर सकते हैं। अब वहाँ कहता है कैटेगरी 4 कार्गो शिप्स ऑन डेक इन क्लोज कार्गो ट्रांसपोर्ट यूनिट और अंडर डेक इन क्लोज कार्गो ट्रांसपोर्ट यूनिट। कार्गो शिप्स में दोनों में अलाउड है, पैसेंजर शिप प्रोहिबिटेड। So most of these categories on passenger ships you will see they are prohibited. So class 1 की जो storage categories हैं they are also category 1, category 2, category 3, category 4 and category 5. So there are 5 categories for class 1. अब similarly for classes 2 to 9 other than class 1 उनकी categories क्या कर दी उसने, उसको थोड़ा differentiate कर दिया, storage category A, B, C, D, E. So dangerous goods of classes 2 to 9 shall be stored as indicated in column 16A. अब 16A में अगर हम देखते हैं goods of classes 2 to 9, चलो ये भी देखते हैं 2 to 9 में क्या लिखता है, वो कैटेगरी 1 to 5 लिखता है या कैटेगरी ABCD लिखता है। तो 2 to 9 के जो गुड्स हैं क्लासेस 2 to 9, these goods are divided into same कि कैटेगरी A में ऑन डेक, अंडर डेक, ऑन डेक, अंडर डेक, यहाँ पे हमें बता देता है व्हाट इज अलाउड, हाउ इट इज टू बी कैरिड। एंड अगर हम DGL देखें तो ये तो आपका सारे एक्सप्लोसिव्स हैं। लेट्स सी क्लास वाइज, दीज आर ऑल क्लास 1। लेट्स सी एनीथिंग अबाउट बियॉन्ड क्लास 1, क्लास 2 या क्लास 3, उसमें क्या कैटेगरी देता है। कैटेगरी दिस इज क्लास 1.1, 1.3, these are all class 1 cargos. क्लास 2 नहीं है भाई, 1.4, यस क्लास 2, 2.2, 2.3। अब इनकी अगर हम यहाँ पे देखें, लेट्स सी व्हाट कैटेगरी, देखिए कैटेगरी A, कैटेगरी D, उसमें था कैटेगरी 1 to 5, यहाँ पे कैटेगरी A to D। So ये कैटेगरी A to D again valid for TG classes 2 to 9। तो EMS तो हमने देख ही लिया था, that we have understood, fire schedule and spillage schedule। अब ये स्टोरेज for 2 to 9 is कैटेगरी D एंड ये आपका स्टोरेज कोड SW1, SW2 एंड यहाँ पे भी सेग्रीगेशन कैटेगरी, ये चीज़ अलग है, सेग्रीगेशन कैटेगरी SG 46 या 35 या 46। अब इसको भी हम देखते हैं। तो ये तो हो गई आपकी स्टोरेज कैटेगरीज फॉर एक्सप्लोसिव्स। देयर आर 5 कैटेगरीज एंड 2 to 9 देयर आर आल्सो 5 बट दे आर नेम्ड एज कैटेगरी A, B, C, D अप टू E। अब ये स्टोरेज कोड्स, स्टोरेज कोड SW1 मीन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम सोर्सेज ऑफ हीट। तो उसके आगे देखो उसने कितनी अच्छी तरह से क्लियर कर लिया कि ये जो पर्टिकुलर कार्गो है, नाउ वी आर लुकिंग इनटू अ पर्टिकुलर कार्गो विद द UN नंबर। हम एक इंडिविजुअल कार्गो के लिए जा रहे हैं जो मेरे को ऑफर किया गया, चाहे वो कंटेनर में है चाहे किसी में भी है। तो उसके अंदर मैं स्टोरेज कोड देख लेता हूँ। तो यहाँ से आपको कॉलम 16A से हमें स्टोरेज कोड मिल जाता है। SW1 मीन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम सोर्सेज ऑफ हीट, क्लियर ऑफ लिविंग क्वार्टर्स। तो इस तरह से ये आपके स्टोरेज कोड्स हैं 28 अप टू 28, ये आपके स्टोरेज कोड्स आ गए विच आर गिवन इन कॉलम 16A। अब 16B में उसने क्या दे दिया हमें, सेग्रीगेशन कैटेगरीज। सेग्रीगेशन कैटेगरीज भी देखते हैं वो क्या कहता है। ये तो हैंडलिंग कोड्स हैं, हैंडलिंग में भी H1, H2, H3 ये भी उसने दे दिया कि आपने कैसे उसको हैंडल करना है। दिस गुड्स आर कीप एज कूल एज रीजनेबली प्रैक्टिकल, कीप देम ड्राई, वे तो हैंडलिंग। इसके साथ आप, हाँ जी सर ये स्टोरेज कोड और ये हैंडलिंग कोड चैप्टर या IMDG वॉल्यूम 1 में दिए होते हैं क्या? या चैप्टर 7। ओके सर। ये देखिए ना, यहाँ से आपको दिखता है, ये देखो 7.1.5, दिस इज द चैप्टर 7.1.5। तो ये अब लेटेस्ट अमेंडमेंट थी, बिकॉज मेरे पास लेटेस्ट बुक नहीं है। दिस इज एज पर 37th अमेंडमेंट ऑफ 2014 से। तो 2014 में जब उसने अमेंड किया तो उसने ये सारे कोड्स की कैटेगरीज वगैरह इस तरह से बना दी। अब आ गई कैटेगरीज। अब कई बार मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आई थिंक समटाइम आई फाउंड, तो इसको बाद में देखेंगे ग्रुप्स को।
इसने सेग्रीगेशन कोड्स कि पूछा उसने सेग्रीगेशन कोड्स। अब हम तो सेग्रीगेशन पढ़ते आ रहे थे, सो दैट्स वाई मेरे को ढूंढ के ये निकालना पड़ा कि यार सेग्रीगेशन कोड्स अलग चीज़ है और सेग्रीगेशन टर्म्स अलग चीज़ है। तो आप वो लिख देता है कि ओके राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डीजी मैनिफेस्ट, डेंजरस गुड्स, दिस थिंग, EMS, सेग्रीगेशन कोड। तो मैंने पढ़ा क्या, सिर्फ सेग्रीगेशन पढ़ा, कोड्स मैंने पढ़े नहीं थे। तो मैंने सेग्रीगेशन अवे फ्रॉम दिस थिंग उसको डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया, वो गलत हो गया। सो सेग्रीगेशन कोड्स बेसिकली 16B में के सर दिस इज गिवन इन कॉलम 16B ऑफ द DGL। एंड ये कोड क्या कहता है, देखिए SG1, SG2, SG3 सेग्रीगेशन एज फॉर क्लास 5.1 या SG5 स्टो सेपरेटेड फ्रॉम, है वही चीज, स्टो अवे फ्रॉम एसिड्स, अवे फ्रॉम एल्कलीज। तो चाहे अवे फ्रॉम है चाहे सेपरेटेड फ्रॉम है, तो यहाँ पे वो फर्दर उसको एक किस्म का ज़्यादा माइन्यूटली डिस्क्राइब कर देता है कि यार ये क्या चीज़ है। SG27, अब हमने देखा था हमारे पास कौन सी कैटेगरी थी, SG46 सेग्रीगेशन में, 16B सेग्रीगेशन कोड इसको कौन सा है, SG46। सो व्हाट इज SG46, ये आई थिंक 75 तक है। SG46 स्टो सेपरेटेड फ्रॉम क्लोरीन। तो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए एटलीस्ट आपके पास कि अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन पूछा जाता है या रिटर्न्स में भी आ जाता है कि यार ये क्या है, आई विल सेंड यू दिस ऑल दिस शीट्स, तो आप थोड़ा सा इसको एक दो बार पढ़ के एक दिन रिमेंबर कि सेग्रीगेशन कोड्स क्या हैं। दिस कोड्स आर गिवन इन कॉलम 16B एंड आपकी जो स्टोरेज कैटेगरीज हैं और स्टोरेज कोड्स हैं दे आर गिवन इन 16A। सो 16A 16B उसने बड़ी अच्छी तरह से डिवाइड कर दिया एंड वी लुक इनटू दिस एंड वी कैन डू दिस। अब एक सेग्रीगेशन ग्रुप्स है, सेग्रीगेशन ग्रुप्स वो कहता है फॉर द पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन डेंजरस गुड्स हैविंग सर्टेन सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैव बीन ग्रुप्ड टुगेदर इन सेग्रीगेशन ग्रुप्स, उस चैप्टर में दी। The entries allocated to these groups are listed, of course, in chapter 3, where the dangerous goods list entry 16B, a particular segregation required. अब ये ग्रुप्स हैं, कहता है segregation groups as per the dangerous goods list. These are the acids, ammonium compounds, bromates, chlorates, chlorides, cyanides. इसके उसने 18 ग्रुप बना दिए। So of course जो भी acids है ना, acid कहने से तो acid है, but there are so many acids. अब वो जितने भी हैं जिनकी भी क्वालिटीज केमिकल प्रॉपर्टी एसिड में है, सो वो सारे के सारे एसिड्स में आ जाएंगे। सो इन्हें वो कह देता है दीज आर बेसिकली योर सेग्रीगेशन ग्रुप्स। सो सेग्रीगेशन ग्रुप्स, सेग्रीगेशन टर्म्स, सेग्रीगेशन कोड्स, ये सारी अलग अलग चीजें। तो इनकी भी जो है, इफ यू सी दिस इज अगेन गिवन टू यू इन वॉल्यूम 2 ओनली। वॉल्यूम 2 में उसने ये सेग्रीगेशन ग्रुप्स भी आपको दिए हुए। तो जस्ट लेट्स सी अगर इस बुक में है, बस तो होना चाहिए। सेग्रीगेशन ग्रुप्स जो हैं उसमें काफ़ी सारे, आई थिंक दे आर अरेंज्ड एज पर UN नंबर के हिसाब से वो इसमें अरेंज कर देता है। या डेंजरस गुड्स लिस्ट आ गई। Yeah, these are your, like you see this alkalis, so UN number, and ये सारी की सारी these are alkalis, they coming in, these are the segregation groups. Alkalis सारे अभी, how many of these, see all these things are coming in alkalis group. So this is the 18th, उसके similarly you will go 17th acids, peroxides 16, इसमें भी कितने हैं। So all these group wise, UN number wise, he has arranged these certain things which are common. So segregation groups भी आप लिख सकते हो, segregation codes भी लिख सकते हो, and segregation terms तो आपने अच्छी तरह से पढ़ ली। ठीक है, I hope clear to everyone। क्या हम इसको मिक्स नहीं करेंगे? Compatibility groups and storage categories क्या हैं, स्टोरेज कोड्स क्या हैं, सेग्रीगेशन ग्रुप्स क्या हैं, सेग्रीगेशन कोड्स क्या हैं। सिंपल है कि सारा DGL में है, आपको कुछ नहीं है, सिर्फ DGL के थोड़े से आपने
कॉलम 15 EMS 16A 16B, यार उसके अंदर क्या दिया हुआ है उसको कैसे रीड करना है। ओवरऑल में बाई चांस इफ दे गिव यू द बुक, यार ये क्या चीज़ है सर, इसको हम इस तरह से रीड करेंगे और ये हमें जितने भी प्रिकॉशन जितने भी हैजर्ड्स हैं उसको देखने के लिए दिस मेक्स अस थिंग्स इजी। चलो ठीक है।